জাভেদ ভাই, অনেক সিঙ্গার আছে, কিশোর কুমার আছে, মান্না দে, মুকেশ, কিন্তু হোয়াই রফি? এই যে কোশ্চেন আপনি করেছেন খুবই একটা ওয়াই রফি। এক সময় ছিল যে আমি নিজে রিসার্চ করলাম যে এতগুলো সিঙ্গার আছে প্লেব্যাক সিঙ্গার ইন দ্য ইন্ডাস্ট্রি, দেন ওয়াই মোহাম্মদ রফি। যত একটা হিউম্যান লাইফে একটা মানুষের যত একটা ইমোশনস হতে পারে, ওনাকে রফি সাহেবের গলায় যত ভালোভাবে উনি এক্সপ্রেস করতে পারেন, বা বলবো যে किसी भी शब्द को जिंदा कर देना। जैसे एक इंसान की बॉडी में एक सोल होता है, वैसे ही हर शब्द के अंदर एक सोल होता है। उस आत्मा को जगा के बाहर करना और उसको अपने आवाज़ के द्वारा इस तरह से प्रस्तुत करना कि लोगों को लगे कि ये मेरी बात है। तो ये जो चीज़ है एमनी तो সবার কাছেই আছে, কিন্তু রফি সাহেবের কাছে একটু বেশি আছে, বলবো যে সব থেকে বেশি। আর ওনার আপনি দেখুন যে কমেডি শুন কেন, যে হি ইজ দ্য অনলি সিঙ্গার যে যাকে বলতে পারেন যে হি ইজ জাস্ট লাইক ওয়াটার হি ইজ লাইক ওয়াটার। আপনি যেই বাসনে রেখে দেবেন ওরই আকার উনি সেই রকম হয়ে যাবেন। বা ওনার যে নেসেসিটি ইন দ্য ইন্ডাস্ট্রি, হি অলওয়েজ সে দ্যাট মোহাম্মদ রফি সাহেব ওয়াজ দি আলটিমেট নেসেসিটি অফ দ্য ইন্ডাস্ট্রি। আর উনি এটা প্রমাণ দিয়েছেন কেন, যে হয়তো অনেক যা নায়ক আছে বা সাপোর্টিং আর্টিস্ট আছে বা অন্য কোনো অ্যাক্টর আছে, ওনাদের জন্যে একটা বিশেষ টাইপের দরকার গলা। যেমন রাজ কাপুর, হি অলওয়েজ ওয়েন্ট ফর মুকেশ জি, और शम्मी कपूर वेंट फॉर मोहम्मद रफ़ी जी। बट मोहम्मद रफ़ी साहब ওয়াজ সো ভার্সেটাইল যে ওনার গলাটা একটা ভিখারির মুখ থেকেও বের হতে পারে, একটা রাজার মুখ থেকেও বের হতে পারে। আর দুটো জায়গায় ইট উইল রিমেইন দ্য সেম, দ্য কোয়ালিটি উইল নট বি কম্প্রোমাইজড। যেমন উনি যখন একটা কমেডিয়ানের জন্য গলা দিচ্ছেন, লাইক জনি ওয়াকার और जगदीप और ओम प्रकाश जी, হি ইজ কমপ্লিটলি ইনটু দ্যাট। ওনার গলায় সেই রকমই একটা এসে যাচ্ছে ভাবটা, একটা কমেডি ভাব এসে যাচ্ছে। অনেক অনেক হান্ড্রেড অফ কমেডি সংস আছে যেখানে শুনলে আপনি অবাক হয়ে যাবেন যে রফি সাহেব এইরকম গলা কী করে বের করেছেন। বলা যায় যে উডলিং স্টার্ট করেছিলেন কিশোর কুমার, বাট ইট ইজ নট কিশোর কুমার অ্যাকচুয়ালি। উডলিংয়ের স্টার্ট করেছেন রফি সাহেবের। যা গান আছে ওটা একটা আলাদা স্টোরি আছে। স্টোরিটা বলুন, শুনতে চাই স্টোরিটা। স্টোরিটা যে আছে যখন এটা প্লেব্যাক সিঙ্গিং, অ্যাকচুয়ালি দেখবেন যে রফি সাহেবের ইন্ডাস্ট্রিতে আসার আগে যখন প্লেব্যাক সিঙ্গিংটা স্টার্ট হয়েছিল, দ্যাট ওয়াজ সেই এরাতে প্লেব্যাক সিঙ্গিংয়ের যা স্টাইলটা ছিল, দ্যাট ওয়াজ অফ এ ডিফারেন্ট কাইন্ড। আর কেএল সাইগাল সাহেব ছিলেন, তারপরে প্রদীপজি ছিলেন, তারপরে সিএচ আত্মাজি ছিলেন। সবারই যা একটা প্লেব্যাক যা স্টাইল ছিল, দেখবেন যে সবারই একটা টোন ছিল, নাক দিয়ে একটা ন্যাসাল টোন থাকতো, আর একটা অন্য টাইপের একটা। কিন্তু রফি সাহেব যখন ইন্ডাস্ট্রিতে এসেছেন, ইন সাম কেসেস হি ফলোড কেএল সাইগলজি, অ্যান্ড মোর দ্যান কেএল সাইগলজি ফলোড জিএম দুরানি সাহেব। ওনার যে স্টাইল আছে জিএম দুরানি সাহেব, ওনাকে উনি ফলো করলেন। আর কিছু ক্ষেত্রে বলবো যে খান মস্তানাকে উনি ফলো করলেন। বাট ইমিডিয়েটলি আফটার 1.5 year হি বিল্ট হিজ ওন স্টাইল। আর এটা আমি বলতে পারি, খুবই রেসপন্সিবিলিটি নিয়ে বলতে পারি যে মোহাম্মদ রফি সাহেব ওয়াজ দ্য ট্রেন্ড সেটার অফ প্লেব্যাক সিঙ্গিং। বিকজ রফি সাহেবের পরে প্লেব্যাক সিঙ্গিংয়ের স্টাইলটা টোটালি চেঞ্জ হয়ে গেল। একটা খোলা গলায়, গলার ভ্যারিয়েশন নিয়ে, গলায় কালার নিয়ে, এরকম একটা প্লেব্যাক সিঙ্গিংয়ের একটা যে আরম্ভ হলো, দ্যাট ওয়াজ টেরিফিক। তো দ্যাটস ওয়াই জাস্ট আই অলওয়েজ পার্সোনালি আই লাইক রফি সাহেব দ্য মোস্ট। না, সেটা ঠিক আছে জাভেদ ভাই, কিন্তু আপনি একটু ডেভিয়েট করলেন যে আপনি ইয়ডলিং এর গল্পটা বলছিলেন, ওটাতে আমরা ব্যাক করে আসি। ইয়ডলিং, হ্যাঁ, ইয়ডলিং যে আছে তা সেই সময় যে আছে রফি সাহেবের অনেক গান আছে, যেমন রিপোর্টার রাজু আছে, আর দু একটা আরও ছবি আছে যেখানে রফি সাহেবের ইয়ডলিংটা পাওয়া যায়। আর ইয়ডলিং যে আছে এটা ইটস এ জনার অফ সিঙ্গিং। আমরা যে ইউডলি ইউ এরকম, এটা দিস ইজ ইয়ডলিং। বাট ইয়ডলিংয়ের যে ভয়েসটা, গলাটাকে যে পাঞ্চ করে যে গলাটা বের হয়, রফি সাহেব অনেক অনেক গানে করেছেন। এমন একটা স্টোরি আছে, আই ডোন্ট নো ইট ইজ অথেন্টিক অর নট, কিন্তু পড়েছি আমি, শুনেছি যে রফি সাহেব আর কিশোর কুমার দা খুবই ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন। এমন একটা কি বলবো যে পরিবেশটা তৈরি করা গেল যে রফি ভার্সেস কিশোর। আরও একটা মজার জিনিস কি আছে, দেখবেন যে কিশোর কুমার ফ্যান যা আছে সবসময় রফি সাহেবকে গাল দেওয়ার জন্য সবসময় তৈরি। আর রফি সাহেবের যা ফ্যান আছে ও কিশোর কুমার সবসময় ঝগড়া করতে সবসময় রেডি। টাইমস অফ ইন্ডিয়ার এটা সেই সময় একটা কন্ট্রোভার্সি। ওরা জাস্ট ফর দ্য কি বলবো যে সেল অফ দ্য নিউজ পেপার অর হোয়াট এভার। এখন বলতাম টিআরপি নিউজ, হ্যাঁ, টিআরপি, হোয়াট উই কল টিআরপি। আপনি দেখবেন যে সেই সময় একটা ছিল শামা ইন উর্দু, সুষমা ইন হিন্দি, মাধুরী ইন হিন্দি,
তারপরে টাইমস অফ ইন্ডিয়া, এরা মানে এরকম একটা এই ধরনের একটা মানে কি বলবো যে পরিবেশ যেমন ইন্ডিয়ার পাকিস্তান করে দিয়েছে। একদিকে রফি সাহেবের ফ্যান, একদিকে কিশোর সাহেবের ফ্যান, আর ওরা মানে একদম ইয়ে করতো, মানে কি বলবো যে একটা ডিবেট চলছিল, মানে আর ও ওকে গাল দিচ্ছে, ওকে গাল দিচ্ছে, খুব ফালতু ফালতু কথা বলছে, মানে এখন শুনলেও বিশ্রী লাগে, বলতেও বিশ্রী লাগে। একটা তখন একটা স্টোরি আছে যে কিশোর কুমার one day went to the office of the Times of India and then personally he told from today this article should be banned. আর একটা জিনিস বলি যে এই কন্ট্রোভার্সিটা ছিল, এটা তো গোটা ব্যাপারটা বোঝা যাচ্ছে, কিন্তু ওই সঞ্জয় গান্ধীর গল্পটা, সঞ্জয় গান্ধী ব্যান করার সময় রফি মানে এতটা রফির প্রতি ভালোবাসা ছিল, পা ধরে ছাড়ছিলেন না। আমি আপনাকে একটা কথা বলছি, সেই সময়ে যখন সঞ্জয় গান্ধী ওরকম টাইম ছিল, তো সঞ্জয় গান্ধী তো ব্যানটা লাগিয়ে দিয়েছিলেন যে কিশোর কুমার কোনো রেডিওতে গান আসবে না, কোনো স্টেজ প্রোগ্রাম করতে পারবেন না, কোনো রকম ইভেন্টে যেতে পারবেন না, এরকম একটা ব্যান এসে গেছিল। অ্যান্ড লিটারালি অ্যাট দ্যাট টাইম কিশোর কুমার জি ওয়াজ ভেরি মাচ ফ্রাস্ট্রেটেড। কেন যে একটা এত বড় আর্টিস্টটা আপনি সব দিক থেকে যদি আপনি এরকম করে দেবেন, তাহলে এটা তো মানে মেন্টালি উনি খুবই ফ্রাস্ট্রেট হয়ে গেছিলেন। ফলোইং দ্য সিচুয়েশন অফ কিশোর কুমার, অ্যাজ রফি সাহেব ওয়াজ মেন্টালি ভেরি ক্লোজ টু কিশোর কুমার, অ্যান্ড যখন উনি ওনার কানে পড়লো এই কথাটা, নো বডি নোজ, ইভেন কিশোর কুমারও ওনাকে বললেন না যে আপনি আমার জন্য এই কাজটা করুন। কিন্তু এই যা ঘটনাটা ঘটেছিল, রফি সাহেব का जब जनाजा रखा हुआ था ऑन 1st of August और 31st जुलाई, नहीं 31st जुलाई को तो उनका इंतकाल हुआ था, बट जनाजा जो था दैट वाज ऑन द मॉर्निंग ऑफ द 1st। इट वाज द फर्स्ट टाइम कि इंडस्ट्री के सारे लोग, जितने बड़े डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, हीरोज, हीरोइंस, ऑल वे आर गैदर्ड टुगेदर ओवर देयर। किशोर कुमार वहाँ पे अमित कुमार जी के साथ आए थे। आप देखेंगे वो फोटोग्राफ्स मौजूद हैं, यू कैन फाइंड इट ऑन द नेट। अमित कुमार बैठे हैं, किशोर कुमार बैठे हैं, एंड इस स्टोरी को पर्सनली मुझे देवाशीष दास गुप्ता, जो कि अमित कुमार जी के साले हैं, हस्बैंड ऑफ रीमा गांगुली, वाइफ ऑफ रीमा गांगुली इज द वाइफ ऑफ अमित कुमार, उन्होंने मुझको बताया कि अमित दा ने कहा कि मैंने बाबा को इस तरह से रोते हुए कभी नहीं देखा था। उस दिन रफ़ी साहब के पाँव को पकड़ के बाबा हो करके रो रहा था, और उस दिन उन्होंने बताया कि अब तक मैंने नहीं बताया था क्योंकि मुझे रफ़ी भाई ने बताने को मना किया था, लेकिन आज मैं बताए बिना नहीं रह सकता कि जब मेरे ऊपर बैन लगा था तो इट वॉज रफ़ी भाई के, जिन्होंने जाके खुद से अपने खर्चे पे जाके वहाँ पे बैठ के 4 घंटा पीएमओ ऑफिस में और मेरा बैन हटवा के वापस आए। इवन जब तक कि उस वक्त तो शायद इंदिरा जी ने ये कहा था कि ठीक है आप जाइए, वो हट जाएगा, लेकिन रफ़ी साहब बाहर आके बैठ गए थे और कहा कि जब तक कि बैन नहीं हटेगा आई एम नॉट लीविंग, और बैन हटवा के ही वापस आए थे। तो एक ऐसा रिलेशन दो आर्टिस्टों का, जिसको पता नहीं उनके चाहने वालों ने क्या से क्या बना दिया, सुनलेও खराब लगे, बोललेও खराब लगे। और पर्सनली किशोर कुमार वॉज एन आर्डेंट लवर ऑफ रफ़ी साहब। একদম একদম না হলে পার্সোনালি আই থিঙ্ক কিশোরদা ওয়াজ এ জিনিয়াস। কেন যে ইন্ডাস্ট্রিতে থেকে যতই জনরা আছে, যতই ফিল্ড আছে, ওয়ার্ক ফিল্ড আছে, যেমন রাইটিং আছে, এডিটিং আছে, অ্যাক্টিং আছে, মিউজিক আছে, উনি তো সব জায়গায় উনি ছিলেন। কিশোর কুমার ওয়াজ নট অ্যান অ্যাক্টর ওনলি, হ্যাঁ সে তো বটে, হি ওয়াজ আ রাইটার, হি ওয়াজ আ প্রডিউসার, হি ওয়াজ আ ডাইরেক্টর, হি ওয়াজ আ সিঙ্গার, উনি তো সব কিছু ছিলেন। কিন্তু রফি সাহেবকে উনি সবসময় একটা জায়গা দিয়েছিলেন। উনি জানতেন যে হ্যাঁ আমি সব কিছু করতে পারি, কিন্তু রফি সাহেবের যা গলা আছে বা ওনার যা কমান্ড আছে ওর সিঙ্গিং, ওটা আমার ক্ষমতা নেই, এটা উনি জানতেন। অ্যান্ড দিস ইজ দ্য রিজন 14 বা 15 গান হি ওয়াজ অ্যান অ্যাক্টর। ওনার ছবিতে রফি সাহেবের কণ্ঠে উনি গান গিয়েছেন। এবং অনেক জায়গায় আছে, যেমন ধরুন হাতিবের আপনার লেখা থেকে জানতে পেরেছি আমি, কিশোর কুমার নিজে সাজেস্ট করেছে বলে এটা আমি পারবো না, রফিকে দিয়ে গাও। হ্যাঁ, ওটা তো ওরমে অনেক স্টোরি। কেন যে দেখুন এরা খুবই মহান পুরুষ ছিলেন। এদের যে মানুষ যতই এদের যে মহানতা এটাই ছিল যে ওনাদের কাছে মানে কোনো ইগো প্রবলেম ছিল না। যা ফ্যাক্ট আছে ওটা আমি অ্যাকসেপ্ট করবো যে হ্যাঁ দিস ইজ দ্য ফ্যাক্ট। তখন উনি তো স্পষ্টভাবে বলে দিলেন যে ভাই ये जो गान है क्या तुम मेरा इम्तहान ले रहे हो, तुम रफ़ी भाई से ये गाना गवाओ, लक्ष्मी क्यों नहीं बोल रहे। एंड देन दैट सॉन्ग वेंट टू रफ़ी साहब, नफरत की दुनिया को छोड़कर। किंतु अनेक दिन आगे फिल्म शरारत, अजब है दास्तां तेरी ये जिंदगी, मीना कुमारी, किशोर कुमार ऑन पियानो, किशोर दास सिंगिंग in the voice of Rafi साहब। तो इन लोगों में प्लस देयर वाज अ शो इन टोरंटो आफ्टर द डेथ ऑफ रफ़ी साहब, व्हेन किशोर कुमार साहब उन्हें स्टार्ट करलेन फ्रॉम द सॉन्ग ऑफ रफ़ी साहब। वो मेरे दोस्त भी थे, मेरे भाई भी थे। मैं आज का ये प्रोग्राम रफ़ी साहब, रफ़ी भाई की
याद में उनका गीत गा के शुरू कर रहा हूँ. एंड दैट वाज द सॉन्ग फ्रॉम चित्रलेखा, मन रे तू काहे ना धीर धरे. दैट वाज द सॉन्ग. মান্নাদের ফেভারিট গান, মান্নাদের ইন্টারভিউ নিয়েছি আমি, মান্নাদে বললেন এটা ফেভারিট গান। মান্নাদের কোনো ইয়ে ছিল না, এত ক্লিন হার্টের লোক ছিলেন। Manna Dey was himself a very great singer. And উনি অ্যাডমিট করেছেন রফি ইজ দ্য গ্রেট। ওনার তো মানে কি বলবো যে ওনার তো যা চাচা ছিলেন কেসি দে, ওনার ওখান থেকে উনি ওনার আন্ড্রয়েড ছিলেন, তো হি ওয়াজ আ ভার্সেটাইল। কিন্তু এক জায়গায় এসে মান্না দাও একটা জিনিস অ্যাকসেপ্ট করতেন, উনি বারবার বলেছেন রফি সম্বন্ধে, ये रफ़ी साहब का तो अपना एक घराना होना चाहिए था, जैसा ये किराना घराना होता है, मरेल घराना होता है, वैसा रफ़ी साहब का अपना एक घराना है। और मैंने बहुत कोशिश किया लेकिन मैं कभी भी गाने में रफ़ी को नहीं हरा सका। हाँ, लेकिन मैं उनको पतंगबाजी में मैं उनको हरा देता था, मैं उनकी पतंग को काट देता था। These are the words of मन्ना डे, एंड नेट पे आप देखिएगा। और यहाँ पे 2008 या 9 में कलकत्ता में एक प्रोग्राम हुआ था, इसमें आपका नजुल मंच। आई वॉज पर्सनली ओवर देयर इन दैट प्रोग्राम। तो उसमें तो क्या है कि बंगाल में एज यू नो कि बंगालीज आर देयर एंड सो मेनी नॉन बंगालीज आर देयर। আমরা বাংলায় কথা বলি, বাংলায় গান শুনি, কিন্তু এখানে मन्ना डे उनके चाहने वाले तो हैं, बट रफ़ी साहब के चाहने वाले भी बहुत ज़्यादा हैं। एंड आई रिमेंबर द डे जब उनका एक एल्बम निकला था, एलपी फ्रॉम पॉलीडोर, आजो मधुरो बांसुरी बाजे, नजुल गीति। एंड दैट ईयर पर्सनली आई सॉ दैट বাঙালিরা ওরা আর রফি সাহেব বলছে না, মোহাম্মদ রফি বলছে না, আমাদের গুরুদেব এরকম করে কথা বলছে। হ্যাঁ, ওর আগে রফি সাহেব বাংলা গান অনেক, ওই দূর গগনে और তোমাদের आशीर्वादे, तो रफ़ी साहब ने 36 लैंग्वेजेस में गाने गाए, उनमें से एक बंगाली भी था। एंड पर्सनली वो कलकत्ता को बहुत लाइक करते थे। उनसे एक दफ़ा पूछा गया था उनके इंटरव्यू में कि आप अपने प्रोग्राम के लिए तो बहुत सारे दुनिया में जाते हैं, यहाँ वहाँ हर जगह पे जाते हैं, विच इज़ योर फेवरेट सिटी जहाँ आपको जाना बहुत अच्छा लगता है? एंड ही टोल्ड कोलकाता। कोलकाता। अब इसके पीछे वो कहना कल्चरल के अलावा उनको यहाँ के बंगालियों की बनी हुई वो मछली बहुत पसंद थी। वो उनके एक म्यूजिशियन हुआ करते थे बच्चूदा, अभी वो बेचारे नहीं हैं। तो बच्चूदा ने बताया था, तो जब कलकत्ता वो आते थे तो पार्क होटल को ज़्यादा प्रेफर करते थे, इधर ग्रैंड और पार्क वो ज़्यादा प्रेफर करते थे। तो बच्चूदा से कहते थे कि बच्चू, तो बच्चू ने अब्बा कहते थे, तो कहते थे कि घर से मछली भात बनवा के लाना अपने दुल्हन के हाथ से। तो बच्चूदा ने बताया कि एक दफ़ा क्या हुआ कि मैं एल्युमिनियम का टिफ़िन कैरियर में मछली भात चटनी प्याज ये सब लेके और मैं चला गया। तो दैट टाइम ही वाज इन पार्क होटल। तो वहाँ पर रिसेप्शन पे मुझको रोक लिया कि कहाँ? तो मैंने बताया मुझको रफ़ी साहब से मिलना है। तो बोले करे वो रफ़ी साहब से आप कैसे मिल सकते हैं? बोला आप उनको बोलिए कि बच्चू आया है। तो रिसेप्शन से उनके रूम में जब उन्होंने फ़ोन किया, पता चला तो भेज दो। तो उनसे रिसेप्शन पे कहा गया कि वो मुझसे बोले कि आप इसको यहाँ रख के जाइए। बोले नहीं नहीं, यही तो लेके जाना है मुझको रूम में। और वो फिर ऊपर गया और जाने के बाद में बोले कि अब्बा बैठे हुए थे, अरे आ गया बच्चू, चलो 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 जल्दी निकालो, बहुत ज़ोर भूख लगी है। एंड दैट टाइम रफ़ी साहब जो थे वो सोफे से उतर के कारपेट पे बैठ गए और वहाँ पे जो है वो न्यूज़पेपर जो मॉर्निंग में आया था वो न्यूज़पेपर को बिछा के बोले चलो चलो जल्दी निकालो। एंड फिर मैंने सब परोस दिया, बैठ के उन्होंने बहुत खाया, बहुत तारीफ़ की। तो ये सादगी थी रफ़ी साहब की। ये भी कहा जाता है कि रफ़ी साहब तो इतने सीधे थे, इतने मासूम थे, उनको दुनियादारी का कोई तजर्बा नहीं था, वो तो भगवान के आदमी थे। आशा जी ने एक जगह पे क्लेम किया, मेरे वीडियोस में आप देखेंगे कि उन्होंने कहा कि रफ़ी साहब इम्प्रोवाइजेशन नहीं करते थे। वो जितना उनको म्यूज़िक कंपोज़र बताते थे बस वो उतना ही गाते थे और गा के चले जाते थे। वो इम्प्रोवाइज़ नहीं कर सकते थे जैसा कि हम लोग करते हैं या दीदी करती है। मैं इस विषय में एक बात कह दूँ आपसे, একটা কথা আমি বলতে চাইছি যে रफ़ी साहब बहुत सीधे थे, बहुत शरीफ थे, बेवकूफ़ नहीं थे। शरीफ होना एक अलग क्वालिटी है, बेवकूफ़ होना एक आपका ड्रॉबैक है। और मैं दादा आपसे एक सवाल करता हूँ कि जो आदमी इतना सीधा, इतना सरल, इतना बेवकूफ़, इतना ये था, उसने एज एन अनक्राउंड किंग इंडस्ट्री पे, बॉलीवुड इंडस्ट्री पे 36 ईयर्स एक राजा की तरह राज कैसे किया? दूसरी बात यह है, मैं ये मानता हूँ रफ़ी साहब जानते थे कि उनको ऊपर वाले ने क्या दिया है या उनके पास में क्या पावर है। ही नोज़ दैट। इसीलिए उनके चेहरे पे हमेशा एक स्माइल रहती थी और उसी स्माइल की आड़ में वो सबको माफ़ करते चले जाते थे और
छोड़ते कुछ भी है उसको फॉरगिव करो। না, ওটার কন্ট্রোভার্সির একটা কাউন্টার আছে, রফি সাহেবের সঙ্গে উষা টিমোথি ওটা কেটে দিয়েছেন পুরো, বলে না এটা শাহিদ রফি বলেছেন যে মাপ চাওয়ার কোনো গল্প নেই বলে দিদির কাছে ওই যখন কন্ট্রোভার্সি হয় না। না না ওটা একটা আলাদা আমি আজ আসছি ওদিকেও আসছি আমি তা আমি যা বলছি যে उनको पता था कि ये बंदा जो मेरे खिलाफ कॉन्स्पिरेसी कर रहा है या मुझको ही ट्राइंग टू डिमोरल मी और मेरे लिए बट ही विल कम टू मी ही नोज, इसलिए उन्होंने कभी भी किसी के साथ झगड़ा नहीं किया, कभी किसी के पीछे कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं किया। अरे अरे हाँ ठीक है करके आई एम जस्ट गिविंग यू सम नेम कि जिन लोगों ने रफ़ी साहब के खिलाफ बात किया फिर उनके पास आए जब उनको काम पड़ा। तो वन ऑफ देम इज बी आर चोपड़ा, यश चोपड़ा, आर डी सलील, इवन ओपी नैयर। ওপিনিয়র মানে যখন একবার हाँ ओपी नैयर के साथ क्या था कि मतलब उनको ईगो प्रॉब्लम बहुत था, सुपरमेसी कॉम्प्लेक्स बहुत था ओपी नैयर को। तो ओपी नैयर साहब कहते थे कि मैं रफ़ी साहब के हट से हट के सोच भी नहीं सकता, लेकिन जब उनको टाइमिंग की थोड़ी प्रॉब्लम हुई एट दैट टाइम शंकर जयकिशन की रिकॉर्डिंग से ही वॉज अ बिट लेट, तो ही पैक्ड अप नहीं और रिकॉर्डिंग भी नहीं करनी और काम भी नहीं करना। अब यहाँ पे जस्ट आई एम कमिंग टू द अनदर पॉइंट कि ओपी नैयर ने जब ये काम को बंद कर दिया रफ़ी साहब के साथ काम करना, फिर तो वो उनकी डेथ हो गई। সাবস্টিটিউট কে ছিল, যেমন লতার সঙ্গে যখন ইয়ে হয় লতাজির সাথে হয় তখন সুমন কল্যাণপুর, এখানে সাবস্টিটিউট রফি সাবস্টিটিউট কাউকে পেয়েছিলেন ওই রেঞ্জের? রফি সাহাব কি সাবস্টিটিউট আপনি যে জিজ্ঞেস করেছেন খুব ভালো আপনি কোশ্চেন জিজ্ঞেস করেছেন যে যখন লতাজির সঙ্গে হয়েছিল তো সুমন কল্যাণপুর ওয়াজ ডেফিনেটলি a very good substitute for Lata ji, but so far the Rafi Sahab's voice is concerned, उनकी जो voice की जो quality थी ना, I think it was a voice incomparable। ইয়া আমি একটাই শব্দতে বলবো যে রফি সাহেবের ভয়েস ওয়াজ ইনকম্প্যারেবল, ইট ক্যান নট বি কম্পেয়ার টু এনিবডিজ ভয়েস, যার জন্য বলা যায় যে উনি গন্ধর্ব ছিলেন বা ওনার যা গলা ছিল, इवन ऋषि कपूर বলেছেন, जितेंद्र বলেছেন, অনেক বলেছেন যে भगवान की आवाज़ थी, अगर कि कोई भगवान की आवाज़ होती तो वो यही आवाज़ थी। আপনি দেখুন যে কত ক্লোন এসেছে রফি সাহেবের পরে, बट nobody could touch। लोग बोले अनवर साहब आए थे तो अनवर साहब को लगा था कि যারা জানে যে হোয়াট ইজ ভয়েস কালচার, ওরা বুঝতে পারবে যে হোয়াট ইজ আনওয়ার, হোয়াট ইজ শাব্বির কুমার, হোয়াট ইজ মোহাম্মদ আজিজ, হোয়াট ইজ সোনু নিগম, এরা পুরোকে মানে মিক্স করেও রফি সাহেবের 5% নোবডি ক্যান ক্রিয়েট। আমি আপনাকে একটা ছোট স্টোরি বলছি। মোহাম্মদ আজিজ সাহেব ওয়াজ আ গুড ফ্রেন্ড অফ মাইন্ড, উই ওয়ার ভেরি ক্লোজ অ্যান্ড অনেক সময় আমরা বসে কথা বলতাম। উনি নিজের কথা খুবই কম করতেন, কথা বলে রফি সাহেবের কথাই হতো। তো আমি একবার ওনাকে জিজ্ঞেস করলাম যে রফি সাহেবকে বাদ আপনি ইন্ডাস্ট্রি में इतना अच्छा किया है, तो ভালো আপনি করছেন, হাজার হাজার গান আপনিও করছেন, আপনি নিজেকে কোন জায়গায় দেখেন इन कंपैरिजन टू रफ़ी? उन्हीं कोनोदिन रफ़ी बोलते ना, उन्हीं बॉस बोलते हैं। तो बॉस के सामने आप खुद को कहाँ देखते हैं? तो वहीं बोले ना, अरे यार बॉस है। रफ़ी साहब की तरह कोई 5% भी गा लेगा तो दुनिया का बहुत अच्छा सिंगर कहलाएगा। दिज आर द वर्ड्स ऑफ मोहम्मद अजीज। तो আমি বললাম যে তাহলে আপনি কত পার্সেন্টে আছেন? তো উনি বললেন, হেসে বললেন, अरे यार अभी तो हम 1-1.5% पे भी नहीं पहुँचे हैं। दिज आर द वर्ड्स ऑफ मोहम्मद अजीज फॉर रफ़ी साहब। ঠিক আছে। মান্না দে বলছিলেন যে আমি জিজ্ঞেস করলাম পার্সেন্টেজ, আপনার গল্প একই রকম কোশ্চেন আমি করেছিলাম, এটা খুব সিলি কোশ্চেন হয়েছিল। উনি বললেন 1 থেকে 3 রফি, তারপরে তারপরে আমরা। গজল সিঙ্গিংয়ে মেহেদি হাসান, সবাই জানেন মেহেদি হাসান বলা যায় যে হি ইজ দ্য এম্পায়ার অফ গজল সিঙ্গিং, অ্যান্ড ইট ইজ ট্রু। একবার ওনার ইন্টারভিউতে, এটা আমার ভিডিও আমি প্রস্তুত করেছি অলরেডি, ইউটিউবে আছে, দিস ইজ আ প্রমাণ ইন দ্য ভয়েস অফ মেহেদি হাসান সাहब हिमसेल्फ। उन्होंने जिज्ञेस किया, अच्छा कोई ऐसा भी सुर है, कोई ऐसा भी राग है कि जिसको आप नहीं अदा कर सके? आप तो इतने बड़े सिंगर हैं, फिर भी आपने उस सुर को आप नहीं कर सके। तो उन्होंने कहा कि हाँ, एक सुर ऐसा है, अटंग सुर ऐसा है कि मैंने 40 साल रियाज किया, फिर भी मैं वहाँ तक नहीं पहुँचा। तो इंटरव्यूअर हंस के कहा कि ये कैसी बात आप कह रहे हैं कि आपने 40 साल रियाज किया और एक सुर तक आप नहीं पहुँचे? तो कितना पहुँचे आप? बोले मैं 14 आने पहुँचा हूँ, 16 आने नहीं पहुँच सका, मुझे अभी भी 2 आना पहुँचना बाकी है। तो उनसे पूछा गया तो फिर कोई ऐसा भी सिंगर है कि जो 16 आने वहाँ तक पहुँचा? कहा है ना, रफ़ी है ना, वहाँ तक सिर्फ और सिर्फ रफ़ी की आवाज़ पहुँचती है और किसी की आवाज़ नहीं पहुँचती है। और ये जो मेहेदी हसन साहब का इंटरव्यू है, इट इज़ ऑलरेडी अवेलेबल ऑन यूट्यूब, एनीबडी कैन गो एंड सी दैट। तो ये थे, आपने पूछा ना कि वाई मोहम्मद रफ़ी, तो दिस इज़ द रीज़न मोहम्मद रफ़ी, क्योंकि किशोर दा उनके फ़ैन,
मन्ना दा उनके फ़ैन, हेमंत कुमार साहब जो कि ख़ुद इतने बड़े कंपोज़र थे वो उनके फ़ैन। आपको शायद याद होगा 1952 में जब आन आई थी, ऑल द मेल सॉन्ग वी आर रिकॉर्डेड इन द वॉइस ऑफ हेमंत कुमार जी। टकरा गया तुमसे दिल ही तो है और इस तरह के जो भी गाने थे। बाद में उन गानों को रिप्लेस किया गया इन द वॉइस ऑफ रफ़ी साहब। हेमंत दा ने अपने गानों में, अपनी कंपोजिशन में दर्जनों बार रफ़ी साहब का इस्तेमाल किया, जबकि हेमंत दा खुद ही बहुत अच्छे सिंगर थे। खुद रफ़ी साहब ने बीवी और मकान एक फिल्म आई थी, उसका एक गाना था जाने कहाँ देखा है तुम्हें। ওই গানের তিনটে পার্ট ছিল, তিন ধরনের, একটা পাঞ্জাবি টাইপ, একটা ইজিপশিয়ান টাইপ, একটা অন্য টাইপ। সেই কম্পোজিশন যখন হেমন্তদা দিলেন रफ़ी साहब के, तो रफ़ी साहब ने सुना गा कर तो थोड़ा गा के बताइए। तो हेमंत दा ने उनको हारमोनियम पे गा के बताया। बोले दादा आप इतना अच्छा गा रहे हैं, मुझसे क्यों आप गवा रहे हैं? बोला नहीं मुझे पता है ना, तुमसे मुझे क्या निकालना है, ये गाना तुम रिकॉर्ड करो। एंड दैट इज़ टू गुड। पता नहीं आपने सुना है कि नहीं उस गाने को, कभी सुनिएगा, इट्स टू गुड। आप येसुदास की बात लीजिए, आप बाला सुब्रमण्यम जी की बात लीजिए, आप जिनकी भी बात लीजिए, कुछ तो ऐसा होगा ये लोग रफ़ी साहब का नाम आने पे कान को हाथ लगाते हैं। सिर्फ एक ही सिंगर मुझको ऐसा नज़र आया जो हमेशा से ये कोशिश करती रही कि वो ये साबित करे कि शी इज़ बेटर देन रफ़ी, और शी इज़ द ओनली वन जो हमेशा से ये प्रमाण करने की साबित करती है कि शी इज़ बेटर। मैं तो इतना ही she tries to demean her time and again. या तो दिस इज़ द थिंग। জাভেদ ভাই, নওশাদ সাহেব একবার বলেছিলেন, একটা ইন্টারভিউ দেখেছিলাম নওশাদ সাহেবের, যে শিল্পী হতে গেলে ভালো মানুষ হতে হবে। শিল্পী তো অনেক, হয়তো রফিও হতে পারে, শিল্পী হয়তো রফির মতো হবে, কিন্তু ভালো মানুষ হবে না। এই ব্যাপারে আপনার কি মতামত? নোয়িং দ্যাট থিং আই এগ্রি উইথ ইউ। दादा मुझको याद है एक दिन एक बार नौशाद साहब ने ये बात कही थी कि इंडस्ट्री में मोहम्मद रफ़ी जैसा कोई गुलकार तो आ सकता है, लेकिन उनके जैसा इंसान नहीं आ सकता। কিন্তু ওনার যে এই স্টেটমেন্ট ছিল, এই স্টেটমেন্টকে আমি টোটালি কন্ডেম করি। কেন? দেখুন যে 42 ইয়ার্স হ্যাভ বিন পাস, দ্য টাইম হ্যাজ প্রুভড ইটসেলফ, দেয়ার ক্যান নট বি অ্যানাদার। এখনো গানগুলোর রেলেভেন্স, এখনো রফি। দ্য টাইম হ্যাজ প্রুভড ইটসেলফ दैट देयर कैन नॉट बी मोहम्मद रफ़ी। देखिए ভালো মানুষ, ভদ্র মানুষ, शरीफ इंसान, ये रफ़ी साहब पे आके ख़त्म नहीं होता है। रफ़ी साहब जैसे शरीफ इंसान आ सकते हैं, हो सकते हैं, अभी भी होंगे। ऐसा तो नहीं कि रफ़ी साहब के बाद दुनिया ख़त्म हो गई, दुनिया तो अभी भी अच्छे लोगों से ही चल रही है। तो ये सही है कि रफ़ी साहब एक बहुत ही सुपर ह्यूमन बीइंग थे, बहुत शरीफ इंसान थे, फरिश्तों जैसे मासूम थे, एवरीथिंग इज़ फाइन। पर सो फार द सिंगिंग क्वालिटी इज़ कंसर्न, मैं इस बात को दावे के साथ कहता हूँ, एंड आप लोगों के सामने भी मैं इस बात का दावा करता हूँ, देयर कैन नॉट बी अनदर मोहम्मद रफ़ी। जो क्वालिटीज़ वॉइस की ऊपर वाले ने उनको दिया था, उसको टच करने का कोई आसपास हमें कोई ऐसा एक भी नज़र नहीं आता। आप देखिए साइंस आगे बढ़ रही है, टेक्नोलॉजी एडवांस्ड में जा रही है, आपका ये म्यूज़िक का भी मामला बहुत आगे चला गया। अभी जो लोग बेसुरे सिंगर हैं वो भी जब उनका पिच करेक्शन एंड मेलोडाइन के थ्रू से ये सब करके वो लोग भी बहुत अच्छे सिंगर कहलाते हैं। उस टाइम में क्या था? कुछ भी नहीं था, खाली गले से करना, और जो कर जाते थे तो वो अभी तो क्या है कि आप एक रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, उसमें बीच में कहीं पर कोई गड़बड़ हो गया, यू कैन रिकरेक्ट इट दैट टाइम। একটা হলে বা পুরো वन शॉट में पूरी रिकॉर्डिंग करना और सब कुछ करना, और उसमें ऐसी आवाज़, ऐसा एक्सप्रेशन, ऐसा थ्रो, ऐसा पिच, ये आपको किसी और के पास नहीं मिलेगा। सिंगर्स बहुत हैं, रफ़ी साहब से पहले भी थे, रफ़ी साहब के बाद भी आए, बट सो फार जो मैंने आपसे कहा ना कि दैट वाज द वॉइस विच इज़ इनकम्पेरेबल, यू कैनॉट कंपेयर द वॉइस टू एनीबडी। ऐसे हर एक शख्स सभी अच्छा है, अपने अपने रंग में सभी हैं, लेकिन अब क्या है कि कुछ लोगों ने इस चीज़ का एक्सेप्टेंस दिया है, जैसे कि मन्ना दा, जैसे कि किशोर दा, जैसे कि मुकेश जी। आपको वो मालूम है कि मुकेश जी एक दफ़ा अपने घर के टेरेस पे बैठे हुए, बालकनी में बैठे हुए, वो आंख बंद करके लेटे हुए थे रिक्लाइनर पे, और उनकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। नितिन के क्या हुआ पापा, आप क्यों रो रहे हैं, क्या हो गया? तो पता चला कि दैट टाइम मुकेश जी ने कहा कि पता नहीं इस गाने में ऐसी क्या बात, तो रफ़ी साहब ने कैसे इस गाने को गाया है कि मैं जब सुनता हूँ तो नहीं, दैट वाज द सॉन्ग फ्रॉम गाइड, दिन ढल जाए हाय रात ना ढाए। तो ही वॉज लिसनिंग टू दैट सॉन्ग एंड ही वॉज जस्ट क्राइंग। तो इसका मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं भाई मुकेश जी जो थे वो उनके चाहने वालों में से थे। हाँ, तो कौन नहीं था?
ये तो हम लोगों ने मतलब क्या कहना चाहिए कि अच्छा। और अब देखिए, बहुत मज़े की बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ, आप इस चीज़ को फॉलो कीजिएगा। जब भी कंपैरिजन की बात आती है तो रफ़ी वर्सेस किशोर, आपने कभी आज तक रफ़ी वर्सेस मन्ना सुना? रफ़ी वर्सेस मुकेश सुना? किशोर वर्सेस मन्ना सुना? किशोर वर्सेस तलत महमूद सुना? কখনো শুনিনি। कभी कंपैरिजन नहीं होता। जब भी कंपेयर होता है रफ़ी वर्सेस किशोर। लेकिन ये कंपेयर भी कंपैरिजन क्यों होता है, মানে এই কথাটা এখন পর্যন্ত আমি বুঝতেই পারলাম না। ওয়াই একটা এখানে এনিও এখানে, আর যখন দুজন নিজের মানে দুজনকে এত আদর করছেন। किशोर कुमार साहब के घर पे एक केएल सहगल की फ़ोटो है, दूसरे रफ़ी साहब की। और एक बार ऐसा भी हुआ कि एक साहब ने बताया कि देख रहे हैं कि किशोरदा जो है वो ऊपर से उतर रहे हैं, उनके सीढ़ियों के ऊपर ही रफ़ी साहब की तस्वीर लगी हुई थी, हाथ में उनकी अगरबत्ती है एंड वो दिखा रहे। क्या है ये? লোকে যা করে করুক। इससे ज़्यादा श्रद्धा, इससे ज़्यादा मोहब्बत, इससे ज़्यादा प्यार तो ये लोग तो अपने रियल लाइफ से भी और अपने गानों से भी हम लोगों को बहुत कुछ सिखा गए। একদম একদম। हम लोग सीखना नहीं चाहते, ये और बात है, लेकिन इन लोगों ने, इन तमाम लोगों ने अपने गानों के ज़रिए हम लोगों को बहुत कुछ सिखाया है, जीने का ढंग सिखाया है, प्यार मोहब्बत सिखाया है, लोगों से मिलना मिलाना सिखाया है। জাভেদ ভাই, আপনি যা বলছেন সে তো বুঝতে পারছি, আমি বুঝতে পারছি, আপনি বুঝতে পারছেন কি বলছেন। কিন্তু একটা জিনিস বলছি, যেরকম রফির পাওয়া উচিত, রফিজির যেরকম পাওয়া উচিত ছিল সম্মান, সেটা রাষ্ট্রীয় সম্মান হলো না। ফিল্মফেয়ার অ্যাওয়ার্ড আর একটা পদশ্রী দিয়ে হয়ে গেল। 1967 में पद्मश्री दिया गया। और এই কোশ্চেন আমিও করি, ওয়াই, কেন যে এটা একটা অনেক বড় একটা বিড়ম্বনা আছে যে দেখুন যে রফি সাহেবকে, হি ওয়াজ দ্য ওয়ান আইকন ऑफ इंडियन आइकॉन्स बिटवीन द जो 60 आइकॉन्स थे, वन ऑफ द आइकॉन उन्हीं। रफ़ी साहब की अगर हम बात करें तो रफ़ी साहब ने हिंदुस्तानी इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा गीत गाए, सबसे ज़्यादा भजन गाए, सबसे ज़्यादा कव्वाली गाई, सबसे ज़्यादा लैंग्वेजेस में गाए और सबसे ज़्यादा देशभक्ति के गीत गाए, सबसे ज़्यादा। গান নিয়ে গন্ডগোল হয়, কে কত গান গেয়েছে বুঝতে পারি না। এটা কেউ বলতে পারবে না, কেন যে অনলি ওয়ান সিঙ্গার ইজ দেয়ার যার কাছে যার ওনার মানে পুরো ডেটা মজুদ আছে, দ্যাট ইজ আশা ভোসলে জি। শি হ্যাজ গট দ্য টোটাল নাম্বার অফ সং শি হ্যাজ সাং। আদার দেন আশা জি নোবডি ক্যান সে মুকেশ জি কত গেয়েছেন, কিশোর কুমার দা কত গেয়েছেন, রফি সাহেব কত গেয়েছেন। হরবিন্দর সিং বা কেউ এক সদাজি একটা গীত কোষ বার করেছিল, ওদের নাকি টোটাল ফিগার আছে। এটাও আমি চ্যালেঞ্জ করে বলছি, নোবডি ক্যান। इवन रफ़ी साहब के बारे में कोई कह ही नहीं सकता कि उन्होंने एग्जैक्टली कितने गाने गाए। এটা একটা বড় ফ্যাক্টর। এটা 4,500, হ্যাঁ 5,500, 5,700, 6,300, 7,405, 8,500, 12,000, 25,000, 26,000, 28,000, অল ভ্যারিড। একটাও স্টেটমেন্ট কেন যে ওনার অনেক গান আছে যারা মানে কি বলবো ওটাকে লস্ট হয়ে গেছে, কোনো রেকর্ড নেই। আপনি তো কলকাতায় আছেন, HME কোম্পানি এখানেই আছে, ওখানে গিয়ে জিজ্ঞেস করবেন 745 গজলস রেকর্ড হয়েছিল রফি সাহেবের কণ্ঠে, যাতে ফরাক গোরখপুরি নোটেড শায়ের, ওনার 16 গজল ছিল, ফ্যাজ আহমদ ফ্যাজের গজল ছিল, ওটা রেকর্ড হয়েছিল সব কিছু, কিন্তু দ্যাট হ্যাজ বিন লস্ট। ওটাকে কোথায় কাউন্ট করবেন? রফি সাহেব 745 গজল রেকর্ড করেছিল, এখন হার্ডলি আপনার 72 থেকে 75-6 গজল আর অ্যাভেলেবেল, অ্যান্ড তা ওটা কোথায় যাবে ওটা? তা এই নম্বরটা অ্যাটলিস্ট আমি যতদূর আমি রিসার্চ করেছি, আই কুডন্ট ফাইন্ড যে বিচ নাম্বার ইজ কারেক্ট। কেন যে জাভেদ আখতার সাহেব বলছেন 4,500। পার্সোনালি আই হ্যাভ 5,800 সংস ফিজিক্যালি। এবারে বলুন 4,500 এত বড় বিখ্যাত একজন বলছেন, এত রেসপন্সিবিলিটি নিয়ে আমি আপনার সামনে আছি, আপনি বললে আমি প্রমাণ দিয়ে দেবো যে আমার কাছে আই হ্যাভ গট অল 5,800 songs। चंडीगढ़ में एक आदमी रहते हैं, ही टोल्ड मी दैट जावेद साहब आई हैव गॉट 8,000 songs। সুমিত পাল যে পিএইচডি করেছেন রফি সাহেবের উপরে, ওনার সঙ্গে আমার পার্সোনাল যখন হলো কথা, উনি বলেন যে जावेद साहब रफ़ी साहब सॉन्ग 7,405। और से आपकी जो इन्फॉर्मेशन है उसके हिसाब से आप यहाँ तक पहुँचे, बट रफ़ी साहब ने कितने गीत गाए, व्हाट इज़ द एग्जैक्ट नंबर, नोबडी कैन। इवन लता जी के नहीं मालूम है, किशोरदा के नहीं मालूम है। एक अनुमान है कि इन्होंने इतने गीत गाए हैं। না তাহলে লতা, তাহলে যেটা রিফট হলো লতা রফির, হ্যাঁ ওটা যে ছিল যে হু হ্যাজ সাং দ্য মোর নাম্বার অফ সং, গিনিস বুক অফ ওয়ার্ল্ড রেকর্ডে যখন হয়েছিল একটা আর্টিকেল বেরিয়েছিল, যখন মানে গিনিস বুক অফ ওয়ার্ল্ড রেকর্ডে ওরা লিখলো যে দ্য সিঙ্গিং মেশিন, লতা মঙ্গেশকর টাইটেল দিয়েছিল দ্য সিঙ্গিং মেশিন, শি হ্যাজ সাং মোর দ্যান 25,000 songs।
তারপরেই রফি সাহেবের तरफ थी कि एक क्लेम कह लो मैंने उनसे ज़्यादा गीत गाए हैं, तो वो कंट्रोवर्सी थोड़ी इतनी अपर लेवल पे थी और वो इतना फैला कि बाद में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड वालों ने उस आर्टिकल को ही निकाल दिया, लता जी का भी निकाल दिया, क्योंकि प्रूफ तो इनके पास भी नहीं था, उनके पास भी नहीं था। जैसे लता जी के बारे में उन्होंने कहा 25,000 गीत हैं, तो रफ़ी साहब ने भी क्लेम किया कि मेरे तो 28,000 गीत हैं। तो अगर एग्जैक्ट नंबर होता तो फिर उस वक्त वो बात आगे बढ़ती कि नहीं साहब आपको देखिए ये मैंने ये प्रमाण दिया, आपने ये प्रमाण दिया। तो इसलिए उन लोगों ने इस कंट्रोवर्सी, क्योंकि वो जानते थे कि ये इतना सेंसिटिव मैटर है हमारे यहाँ देश में हमारे सुनने वालों के लिए कि वो बवाल हो जाएगा। এখন একটাই কথা আছে যে কিশোরদা নেই, রফি সাহেব নেই, বন্যাদা নেই, মুকেশজি নেই, তালাত মাহমুদ নেই, মানে যত আমাদের সিঙ্গিং ওয়ার্ল্ডে যত সব চাঁদ সিতারা ছিলেন, নোবডি ইজ দেয়ার। ওনার সংস আছেন, ওনার কথা আছে। এখন তো আর মিউজিক বলে আর কি বলবো, এটা তো মানে এটা মিউজিক আছে না মোজাইক আছে কি আছে বলা যায় না। আচ্ছা জাভেদ ভাই, আর একটা জিনিস বলি আপনাকে, যে আপনি বললেন না যে একটু হিন্ট দিলেন আশাজি দাঁড়িয়ে যে ঠিক মতো ইয়ে হয়নি, ওখানে উষা টিমোথি ওটাকে রিপিট করেছেন, বলে না এটা না, এটা ঠিক না। মানে রফি সাহেব একটা গান তোমরা রেকর্ডে যা শোনো তার থেকে 100 টাইমস বেটার উনি নিজে যেগুলো করেন অনেক ভ্যারিয়েশন আছে, অনেক ওনার নিজস্ব কম্পোজিশন। দেখুন আমি একটা কথা আরো বলছি, এই যে আশাজি বললেন যে রফি সাহেব ইম্প্রোভাইজ नहीं करते थे, ইম্প্রোভাইজেশন नहीं करते थे, এই ক্ষেত্রে আমি একটা কথা বলতে, একটা সিঙ্গারই বলেছেন। হ্যাঁ আমি একটা কথা খুবই মানে রেসপন্সিবিলিটি নিয়ে বলছি, রফি সাহেবের কোনো এক গান একটাও উইদাউট ইম্প্রোভাইজেশন নেই। কেন? আগে আমাকে জানতে হবে যে হোয়াট ইজ ইম্প্রোভাইজেশন। ইম্প্রোভাইজেশন বলতে গেলে আমি কি মিন করি। একজন কম্পোজার কম্পোজিশনটা বানিয়ে দিয়েছেন, উনি একটা ফরম্যাটিং করে দিয়েছেন, প্লেব্যাক সিঙ্গারকে দিয়ে দিলেন, ওনার হিসাবে উনি গান করে বানিয়ে এই গান আছে, এটাকে এরকম আপনি রেকর্ড করবেন। এবারে মাইক্রোফোনে যাওয়ার পর উনি শাম্মী কাপুরের স্টাইলে গান করবেন না দিলীপ সাহেবের স্টাইলে গান করবেন না ধর্মেন্দ্রকে মিমিক করবেন না জনি ওয়াকারকে মিমিক করবেন, হোয়াট ইজ দিস? ফরম্যাটটা কি থাকবে? তারপর ফরম্যাটটা সেটাই থাকবে, কিন্তু হোয়াট ইজ দিস যে আপনি গান শুনে বলে দিচ্ছেন আরে ये तो जनी वकर ने गाया, अरे ये तो दिलीप साहब ने गाया होगा, अरे ये तो धर्मेंद्र लग रहा है। हाउ दैट इज द इम्प्रोवाइजेशन नंबर 1। नंबर 2 যেখানে যে একদম যা বারিক কাজ আছে ও তো কম্পোজার, তো যদি কম্পোজার করতে পারতো তাহলে কম্পোজারই করতো না, ও কিশোর কুমার কেন করতো, মান্নাটি কেন করতো, রবি সাহেব কেন করতো? তা এই যে মানে একটা ফরম্যাটিংয়ের উপরে যে নিজের একটা মানে ওটাকে ডেভেলপ করা, আর যে ওই গানটাকে মানে করবে স্ক্রিনের উপরে ওনার রূপে মানে নিজের ভয়েসটাকে ঢেলে দেওয়াটা, ইট ইজ নট ইম্প্রোভাইজেশন। আসমান সে আয়া ফরিश्ता प्यार का सबक सिखलाने, এই গানটা এই স্টোরিটা জানে যে शाम्मी कपूर এসে রাগ করলো, যারে वो गाना तुमने रिकॉर्ड कर लिया, मैं बोला था ये गाना रिकॉर्ड मेरे आने के बाद होगा, पता नहीं तुम लोगों ने यार क्या किया, उस गाने को काम करो फिर से री रिकॉर्ड करना होगा। अरे गाना सुन लो भाई, शंकर जी बोल रहे हैं आप गाना तो सुन लीजिए। और जब उन्होंने गाना सुने से बोला अरे बाबा ये क्या, ये तो मैं सोच भी नहीं सकता, ये गाना इतना अच्छा, रफ़ी साहब मैं नहीं था और मैं रफ़ी साहब इतना अच्छा इस गाने को ऐसा लगता है कि मैं गा रहा हूँ। वो शम्मी कपूर साहब ने पूछा था कि अच्छा रफ़ी भाई आप कैसे आपने इसको बिल्कुल अदा कर लिया? बोले मुझे पता था ना कि तू गाएगा तो यहाँ पर ऐसे पाँव उठाएगा, ऐसे हाथ चलाएगा, ऐसे ये करेगा, मैंने तुझे सोचा और मैंने वैसे गा दिया। तो व्हाट इज दिस? इसको आप इम्प्रोवाइजेशन नहीं कहेंगे तो क्या? 100%। और मैं तो एक बात और कहता हूँ कि ऐसे मिमिक्री इज सच अ वर्ड ये लोग सुनना पसंद नहीं करते। যদি আপনি কাউকে বলবেন যে হি ইজ আ মিমিক্রি আর্টিস্ট, ও মিমিক করে, তো একটু খেপিয়ে যাবে। কিন্তু আমি বলি যে রফি সাহেব থেকে বড় মিমিক্রি আর্টিস্ট সিঙ্গিংয়ে কেউ নেই। হি ওয়াজ আ মিমিক্রি আর্টিস্ট অ্যাকচুয়ালি। ওনার যা উনি যা কেন যে মিমিক, হোয়াট ইজ মিমিক? আপনি কোনো একজনের স্টাইলটাকে আপনি তুলে দিচ্ছেন, कॉपी করছেন, এটাই তো मिमिक्री। दिलीप साहब की आवाज़ में उनकी तरह, शशि कपूर की आवाज़ में उनकी तरह, शम्मी कपूर, जॉनी वॉकर, जितने भी अलग अलग, धर्मेंद्र, राजेंद्र कुमार, एक ये जो हम कोई गाना सुनते हैं हमको लगता है अरे ये तो फला ने गाया, अरे ये तो फला ने गाया, वो क्या था? वो मिमिक्री तो थी ना उनके स्टाइल की, कि उनके अंदर वो ढल जाना, इस तरह से अपनी आवाज़ को मोल्ड कर लेना कि सुनने से लगता है कि अरे ये तो जितेंद्र ही गा रहा है, अरे ये तो धर्मेंद्र ही गा रहा है। तो पहले वो धर्मेंद्र के स्टाइल को रफ़ी साहब ने अपने अंदर उतारा ना, और फिर उसको वैसे उन्होंने डिस्प्ले किया, तभी तो आपको लगा ना कि ये गाना फला आर्टिस्ट गा रहा है। 42 বছর হয়ে গেল, মোহাম্মদ রফি আমাদের মধ্যে নেই, আমাদের ছেড়ে গেছেন, কিন্তু রেলিভেন্সটা একই রকম থেকে গেছে। রফি সাহেবের রিপ্লেসমেন্ট এখনো হলো না, সেই সম্বন্ধে আপনি কিছু না ওটা হবেও না, ওটা যা আছে মানে তেরে নাম সে শুরু তেরে নাম পে খতম, এটা তো আমি কয়েকবার আপনার সামনে বলে দিলাম। দেয়ার উইল নট বি এনি
मोहम्मद रफ़ी, उनसे ही शुरू हुआ, उन पे ही ख़त्म हो गया। हाँ, अब अलग अलग वॉइस टेक्सचर लेके, अलग अलग आवाज़ लेके लोग आएंगे, हम लोग उन्हें सुनेंगे, पसंद करेंगे, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन जो कान में मधु वो टपका गए और दिल में जो दर्द वो पैदा कर गए, आप देखिए ना, ह्यूमन लाइफ का कोई भी एक ऐसा इमोशन आप बताइए, कोई ऐसा आप एक मोमेंट बताइए जहाँ पे रफ़ी साहब नहीं है। एक बताइए आप। बच्चा पैदा होता है तो रफ़ी साहब है, बच्चे का बर्थडे होता है तो रफ़ी साहब है, बाप मरता है तो रफ़ी साहब है, बीवी भाग जाती तो रफ़ी साहब, महबूबा धोखा देती तो रफ़ी साहब, दोस्त है तो रफ़ी साहब, दोस्त ने दगा दिया तो रफ़ी साहब, उस्ताद है तो रफ़ी साहब, देशभक्त है तो रफ़ी साहब, नेता है तो रफ़ी साहब। तो कहाँ पे रफ़ी साहब नहीं है, आप ये बताइए। রেলিভেন্সটা তো সব জায়গায়, हर जगह पे। ব্রিদিং এর মতো। आप उनको मतलब देखा जाए तो आप उनको अपनी ज़िंदगी से, अगर हम सच्चाई से माने, आप उनको अपने लाइफ से अलग सोच नहीं सकते। तो ये थे रफ़ी साहब। আপনি বলছেন এতটা পেডেস্টালের উপরে উঠালেন রফি সাহেবকে, আমি সেটা মানছি, 100% মানছি, কিন্তু রফি সাহেবের যে সম্মান পাওয়ার কথা ছিল সেটা পেয়েছেন কি? ये हमारे देश की बहुत बड़ी विडंबना है और मैं समझता हूँ कि ये रफ़ी साहब की बदकिस्मती नहीं है, ये हमारी बदकिस्मती है कि हम हीरे को पहचानने की कोशिश नहीं करते। हमारे पास, हमारे देश में अभी देखिए भारत रत्न, लास्टली ऐसे ऐसे लोगों को भारत रत्न दिया गया जिनका कोई कंट्रीब्यूशन ऐसा नहीं है जिसके लिए उनको भारत रत्न दिया जाए। इतना कोई इन कंपैरिजन टू रफ़ी साहब होगा, उनका कंट्रीब्यूशन होगा। रफ़ी साहब ने मोर देन 155 सॉन्ग्स गाए देशभक्ति के। सर्दियों के मौसम में लद्दाख के ऊपर जाके उन्होंने फौजियों का उत्साह बढ़ाया, गीत गा गा के, ठंडे में गले, खाली गले से गीत गाना, फौजियों का उत्साह बढ़ाना। শুনতে তো অজন্তা आर्ट्स। एक दो बार नहीं बल्कि 25 बार, जहाँ भी जब भी ज़रूरत पड़ी रफ़ी साहब फ्रंट पे रहे, आगे रहे और देश के लिए उन्होंने चंदे तक किए। ये कंट्रीब्यूशन हम लोग क्यों भूल गए? प्लस आपके देश का नाम इन्होंने जाके बाहर में हर जगह पे ऊंचा किया। बाहर वाले इतना सम्मान देते हैं। ইন্ডিয়াতে কয়েকটা তো রফির একটা মন্দির আছে কয়েকটা। वो वहाँ पे है, बर्मिंघम में एक है तसव्वुर पाशा जी, जिन्होंने रफ़ी साहब का एक श्राइन बना के रखा हुआ है। और ऐसे सरकारी जो रिवॉर्ड अवार्ड इससे हट के, सम्मान से हट के अगर देखा जाए तो हमारे यहाँ हिंदुस्तान में, आप उसमें पाकिस्तान को भी इंक्लूड कीजिए, मिडिल ईस्ट को भी इंक्लूड कीजिए, हर वो आदमी जो रफ़ी साहब का चाहने वाला है, उन लोगों ने अपने दिल में रफ़ी साहब का एक मंदिर बना रखा है। हम उनको, हमारी सरकार भारत रत्न दे न दे, लेकिन रफ़ी साहब एक विश्व रत्न है। और अगर हमारी सरकार अगर भारत रत्न देती है रफ़ी साहब को, तो ये बात मैं आप लोगों के सामने कह रहा हूँ कि भारत रत्न को पाकर रफ़ी साहब धन्य नहीं होंगे, भारत रत्न देकर भारत रत्न धन्य हो जाएगा, हमारा देश धन्य हो जाएगा। और हम ये साबित कर पाएंगे कि हम अपने देश में अपने कलाकारों का, अपने फनकारों का, उन लोगों का जिन्होंने देश की सेवा में इतना कुछ किया है, सम्मान करते हैं और उनकी उस सर्विस को हम न सिर्फ ये कि पहचानते हैं बल्कि हम उनकी इज्जत भी करते हैं। और मैं यही चाहूँगा कि अगर ऐसा हो जाए, हालांकि अब रफ़ी साहब नहीं रहे, उन्हें भारत रत्न मिले न मिले इससे उनकी ज़ात पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन कहीं ना कहीं लगता है कि ये एक ऐसा कर्ज़ है कि जिसकी अदायगी अब भारत सरकार को कर देनी चाहिए। बस मैं इतना ही कहूँगा। শেষ করি এটাকে। এনবিটিভির তরফ থেকে অনেক কিছু জানতে পারলাম। मैं आपके एनबीटीवी की तरफ से मैं ये आवाज़ जनता तक भी पहुंचाना चाहूँगा और भारत सरकार तक भी पहुंचाना चाहूँगा कि होता है कभी कभी कुछ चीज़ें छूट जाती हैं, लेकिन जब उसकी तरफ कोई निगाह उठा दी जाए या उसका ख्याल कर दिया जाए तो फिर लाजिम है कि उस काम को कर लिया जाए। तो मैं तो आपके सामने, आपके चैनल के माध्यम से भी मैं यही कहूँगा कि रफ़ी साहब हमारे देश की एक बहुत बड़ी शान थे, हमारे देश में एक संगीत की धरोहर थे। और रफ़ी साहब के चाहने वाले एक दो नहीं, हज़ार नहीं, लाखों की तादाद में पूरी दुनिया में मौजूद हैं। और ये भी सोचिए आप कि रफ़ी साहब एक ऐसी हस्ती हैं कि जिन्होंने हमारे देश में कहीं ना कहीं रोज़गार भी इकट्ठा किया है, रोज़गार भी फराहम किया है। वो लोग जो रफ़ी साहब की आवाज़ में गाते हैं वो एक दो नहीं, लाखों की तादाद में। तो ये जो रफ़ी सिंगर हैं, जो रफ़ी साहब की आवाज़ में गाने गा के अपनी फैमिली को चलाते हैं, पैसे कमाते हैं, नाम कमाते हैं, शोहरत कमाते हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी कमाई से थोड़ा हिस्सा टैक्स में तो जा रहा है ना। तो रफ़ी साहब के नाम पे सरकार के खाते में टैक्स तो अब भी जा रहा है ना, जो रफ़ी साहब के गाने वाले दे रहे हैं। तो उस हवाले से ही सही कि रफ़ी साहब ने कहीं ना कहीं लोगों को रोज़गार भी दिया है। भारत सरकार की तरफ से मेरी यही गुजारिश है कि जो उनका हक़ है, ये हक़ उनको दिया जाए, क्योंकि ये हक़ उनको देकर न सिर्फ ये कि हम सब धन्य हो जाएंगे, बल्कि
कहीं ना कहीं खुद आप लोगों को भी खुशी होगी कि आपने एक हकदार को उसका हक दिया। देर से आए मगर आए तो मैं आप लोगों से भी इजाज़त चाहूँगा, दादा मैं आपसे भी इजाज़त चाहूँगा। আর ভাই আমি খুব ভালোভাবে বাংলা তো বলতে পারি না, না না, যতদূর মধ্যে দেন না, পেরেছি ভাষার আমি এই হচ্ছে চেষ্টা কমিউনিকেট করা, করেছি। একদম একদম হ্যাঁ। পরিষ্কার বুঝতে কিন্তু পারবেন। আমি এই আমার আশা আছে যে যেই মানে মেসেজটা আমি আপনার এই চ্যানেলের মাধ্যমে আমি দিতে চেয়েছি আপনাদের অডিয়েন্সকে, আমার এই মেসেজটা পৌঁছেছে আশা করি। এইবারে আপনাদের যা ভিউয়ার্স আছেন উনি কমেন্ট করে আর ওনার যা ভিউয়ারশিপের নাম আছে ওটা করে উনি শো করবেন যে উনি কত দূর আমার কথাকে রেখেছে। ওকে জি, নমস্কার।